Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So as you all can see on the board, today we will be doing the MCQs of chapter 1 in economics, that is story of village Palampur. Is that clear? So we will be discussing some important questions related to the chapter. So now let's start without wasting time. So there is the first question on the screen. So you can see it. Bigha and Guintha are the types of village houses, a type of hybrid seeds, the measuring units of grain, the measuring units of land area in village. Anyone? Okay, let's start with Amit. No, not Amit, that Aditya. Aditya, yes? Okay, very good. The measuring units of land, Bigha. समझ रहे हो ना ये बीघा? I hope you all are aware with this. I don't know, some will do like kattha, bigha, ये सब चीज तो सुने हो. So it's a unit used to measure lands. Finance raise to operate a business is called एक finance. Finance means money. So money हम लोग ने एक business चलाने के लिए, operate करने के लिए एक फाइनेंस हमने क्या किया, अपनी ओर से उठाया. अब उठाया मतलब उठाना है मतलब वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट. यस. सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? हम लोग उसको लेबर बोलेंगे, इंटरप्राइज बोलेंगे, लैंड बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे? एनीवन? ओके अमित. कैपिटल. वेरी गुड. Why is it a capital? Because money is always a capital. Finance is related to money. So now when we talk about capital, when we invest capital, that means we in return want profit. हमको बदले में क्या चाहिए? Profit चाहिए ना. Loss भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है. But the main motive is that we earn profit. तो invest किस लिए करने? तो फालतू में पैसा क्यों करें? 60 रुपया दे रहे, 60 रुपया वापस लेने के लिए हम क्यों दे? यस, उससे अच्छा होता है कि बैंक में रख लेते हैं. या बट वेन वी इन्वेस्ट, दैट इज कैपिटल. एंड कैपिटल एक एसेट होता है बेटा, चाहे वो मनी हो या कुछ भी हो, उससे हम लोग को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. यस. सो द आंसर विल बी कैपिटल. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. मिनिमम wages for a farm labor set by the government is? Wages set by the government is? गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया वेज कितना है? सी. सो इट्स गिवन 115. So no, farm labor 300. So anyone write the answer if you know. It's given 300 in a book. $300 in village Palampur set by government. So what is the minimum wage act or maximum wage act of India? It's around 178 or something. So the answer was given 115 in my book. So okay, if you all are saying then it's 300, it's written in the book, then you can go with 300. Okay, is that clear? But it was given 115. So but look, there is a problem in minimum wage act. MWA, you can say minimum wage act, जो इंडिया में लगा था. So that act says there are different places that are following different wages. Okay, there are following different wages. Now remember this. Now all of you listen carefully. So now there are different places giving different wages, following different wages. There are different policies. Government has set certain, but everyone doesn't follow that. The person sometimes get same amount or different amount of wages for doing the same job. Is that clear? Some person are you are also a teacher, another is also a teacher. They are in the same sector. Yes, but sometimes their wages
may be different. It depends. Okay, so you can go with 115. Question number 4. The Green Revolution introduced the farmers to. Okay, come. Is it so? Okay, the cultivation of wheat and rice. So Punjab and Haryana, you can say, have benefited most because of the Green Revolution. The small farmer constitute about -% of total farmers in India. इंडिया का कितने farmers? ओके आशुतोष? Is it correct? No, it's 80%. It's 80%, okay? There are 80% small farmers. You can see the condition of our country. We are farming. Our main economic activity is farming, but even though farmers are not that big, okay, land holders नहीं है ज़्यादा, है कम है, लेकिन ऐसे फार्मर्स ज़्यादा है जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है और जिसको हम लोग स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं. द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड, नए तरीके जो फार्मिंग आज के दिन में आया है उसको क्या क्या चाहिए? लेस लैंड चाहिए, मोर कैपिटल चाहिए, या मशीनरी चाहिए, या सब चाहिए? ओके रिया. मशीनरी से चलिए मान ले मशीनरी मिल गया, पैसा नहीं चाहिए तुमको? जमीन नहीं चाहिए? आंसर ओके, आई विल एक्सप्लेन इट. गो. You can say the answer will be all of the above. Why do we need less land? Because new ways, modern. So when we are modern, तो क्या हो रहा है? We are getting HYVS, high yield variety seed. यानी कि अब हम लोग छोटे लैंड में भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. But at the same time we need more capital. We have more, we have to invest more, and we need machinery तो चाहिए ही भाई. So we can say that we need all these given options for new ways of farming. Is that clear? What is happening out here? The most abundant factor of production is abundant. Tanya, you want to come? Yes. Very good. Labor is the most abundant factor of production. प्रोडक्शन करने के सबसे ज्यादा फैक्टर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? लेबर्स. सो लेबर्स है तो सब कुछ है, मशीनरी भी है, लैंड भी है, बट लेबर्स आर द वर्किंग फोर्स. इज दैट क्लियर? मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? Good. Cultivating more than one crop on the same field each year. एक ही खेत में एक से अधिक, मतलब यू कैन से अनाज या फसल उगाना. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस बोल सकते हो, बोल सकते हो. कल्टिवेशन ऑफ 2 क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज, ये भी नहीं बोल सकते. तो यही हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ पे एक ठीक है, एक अलग अनाज लगाए या एक क्रॉप लगाए, इस लाइन पे फिर अलग रो, ये इसको मल्टीपल नहीं बोलेंगे. ठीक है? लेकिन एक ही लैंड है, इसमें एक फसल उगाए 6 मंथ के लिए, उसमें फिर दूसरे टाइम पे उसी प्लॉट पे दूसरा क्रॉप ग्रो करना. यू कैन ग्रो मोर देन 1 टाइम, यू कैन ग्रो 3 टाइम्स ऑल्सो, बट इट शुड बी इन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड इन विद इन द सेम ईयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप ग्रो कर लिए, एक बार से हो गए 2, एंड एट द सेम टाइम यू कैन से
बीच में जायद में वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, टूल, शेयर कैपिटल, फिक्स्ड डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके श्रेया, raw materials and money in hand. So now working capital, why is it called working? Because without these things your factory cannot run. Is that clear? For example, there are many types of capital and book में अक्सर से दो बात किया है, एक वर्किंग का बात किया है, एक फिक्स्ड का बात किया है। किसका बात किया है? एक वर्किंग का बात किया है, एक फिक्स्ड का। सो नाउ फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल ये टूल्स एंड मशीनरीज आर फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन टू रन अ फैक्ट्री यू नीड सम मनी इन योर हैंड, जिससे तुम्हारा काम चलती रहे। लाइक यू हैव टू पे द लेबर्स वेजेस। यस, अब लेबर का वेज ही नहीं दे पाओगे, तुम्हारा क्या फैक्ट्री चल पाएगी? नहीं। सो मनी इन हैंड इज अ वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे फिर फिक्स डिपॉजिट है, फाइनेंशियल, यहाँ पे पैसे का बात है, ये फिक्स्ड है बेटा। फिक्स डिपॉजिट बैंक से तोड़ सकते हो तुम लोग, तोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। यस, सो इट्स ऑलवेज फिक्स्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो मटेरियल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर वर्किंग कैपिटल्स। अब जैसे कि वर्किंग कैपिटल किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटे? जैसे कि तुम्हारे मशीन्स खराब हो गए, यू हैव टू गिव मनी टू रिपेयर इट। सो अब कैपिटल तो चाहिए ना बेटा। अब उस समय फिक्स कैपिटल तो काम नहीं करेंगे, लेकिन ये सारा चीज जो कैपिटल का बात कर रहे हैं ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनाया गया है बेटा, चाहे मशीनरी भी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन बात अंदर है, एक डे टू डे लाइफ में चाहिए जो कैपिटल, वो है क्या? मनी। इज दैट क्लियर? बिजली का बिल देना पड़ेगा भाई फैक्ट्री का, ये हो सकता है उधारी लगा हुआ हो, नहीं हो सकता है ना, यू हैव टू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग? सुंदरम, ओके, व्हाई नॉट? यहां पे सवाल करो, इसमें से कौन सा इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग? मॉडर्न फार्मिंग का इफेक्ट नहीं है इन चारों में से। सब तो इफेक्ट लग रहा होगा ना। Okay, the answer will be water pollution. Why? Anyone want to explain? Okay, go. Okay, now I'll tell you. Soil degradation is done because modern farming में हम लोग को क्या चाहिए? Pesticides, fertilizers use करेंगे, उसके वजह से soil degradation। Deforestation तो obviously होगा, we need land. Yes. Decrease in groundwater. लेकिन water pollution इसलिए नहीं होता बेटा। Yes, we overuse the water, but the pollution in water is done in very least proportion. अब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन नहीं कर सकते, वाटर पोल्यूशन होती है लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं होता है जितना तुम्हारा सोयल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है। सो इफ यू सी इन पंजाब द ग्राउंड वाटर लेवल हैज बीन डिक्रीजिंग, वहां पे इतना इंटेंसिव फार्मिंग हो रहा है बेटा कि दे आर यूजिंग वाटर फॉर इरिगेशन सो मच, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट है। फार्मिंग एक्सटेंड हो गया, इंटेंसिव हो गया, हाई यील्ड लग रहे हैं, वाटर भी तो चाहिए बेटा। एंड पंजाब आर नॉट लाइक आवर यूपी, बिहार एंड ऑल, दे रिसीव लेस रेनफॉल इन कंपेरिजन टू आवर, एंड इवन दो दे आर फार्मिंग राइस। इज दैट क्लियर? सो व्हाई दे आर फार्मिंग राइस? बिकॉज उन लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है गवर्नमेंट से, और पानी कम है, तो यू नीड इरिगेशन, यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो पैडी, राइस। यस, so they are using ground water in such indiscriminate way, small farmers are facing lots of problems out there. So बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना समझो। So water pollution is not regarded as an effect of modern farming. So now let's move towards next question.
How many families live in village Palampur? Finally, now you are thinking, sir, village Palampur, Palampur बोल रहे, Palampur से क्वेश्चन, ये सारा रिलेटेड पालमपुर से ही है, बस वो हाइपोथेटिकल विलेज है जो बनाई गई है, तो ये जितने भी है पालमपुर में चल रहे थे ये सारे चीजें ना, मॉडर्न वेज आए थे फार्मिंग की, ट्रांसपोर्टेशन आए थे, तो कितने भाई सिंपल है। ओके कम, अतुल कुमार, 450 villages were there in village Palampur. Where do the most of the small farmers borrow money to arrange for the capital in Palampur? अब भाई पैसा कहाँ से लेते हैं? रिलेटिव से, दोस्त से, विलेज मनी लेंडर से, या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, या बैंक से लेते हैं? मनी लेंडर लेते तो बैंक से है, लेकिन विलेज पालमपुर में लोग कहाँ से लेते थे? मनी लेंडर से। सिंपल सी क्वेश्चन है, विलेज मनी लेंडर, साहूकार बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ बोलते, साहूकार ही बोलते हैं ना। ओके, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड। ये मत सोचना कि फ्लड में थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, ऑपरेशन फ्लड ना। फिर बार बार हम बोल दिए, पहले आंसर तुम्हारा ये क्वेश्चन से, ऑपरेशन फ्लड। अब ये नाम सुनने से मत सोचना कि कंट्रोल फ्लड, बाढ़ आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं करे। दिस इज रिलेटेड विद डिफरेंट थिंग, दिस इज रिलेटेड टू आवर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें किसका आता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, व्हाइट रेवोल्यूशन, नो, मिल्क प्रोडक्शन, इट्स रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट व्हाइट रेवोल्यूशन? उससे रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। विर्गेस कुरिन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, रिमेंबर दैट। इट्स नॉट टू कंट्रोल फ्लड, इट्स नॉट अ मेजर टेकन टू स्टॉप फ्लड। ओके, क्वेश्चन सुनने से कभी कभी बोल रहे ना, दे कैन कंफ्यूज यू। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज द हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। यस अनमोल तिवारी। पंजाब, लाइक आई सेड, ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज्यादा, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन किया है? पंजाब हरियाणा के साइड, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा तुम्हारा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू, पालमपुर में जो फार्मिंग के लिए जो एक स्कोप है वो लिमिटेड है, क्यों? ओके आर्यन, fixed amount of land, very good, fixed amount of land. We always say land is also a capital, you can say yes, but land is always fixed. land का limitation होता है बेटा, land का limitations होता है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वो fixed है, सबसे पहली बात तो वो क्या है? fixed है, वो बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो जितना कर सकते हो उससे अधिक तो तुम लोग नहीं जा सकते हो ना। ओके, हु इज अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल? एक इंसान है जो लैंड भी डालता है, लेबर भी डालता है और कैपिटल डाला है। तो सर मत बोलना खिचड़ी बन गया तीन मिला के। एनीवन? भानु प्रताप? मनी लेंडर, पैसा दे रहा है बेटा, वेरी गुड। एनीवन? ओके संजना। बॉयज? हाँ जमींदार, वेरी गुड वेरी गुड। अब बचा दो ही है, मैनेजर और इंटरप्रेन्योर। हाँ इंटरप्रेन्योर, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरप्रेन्योर हु रन्स इंडस्ट्री, जो अपने के लिए कैपिटल भी जुगाड़ करेगा, मनी तुम्हारे लिए लेबर्स भी खोज के लाएगा, सब कुछ करेगा। सो सिंपल क्वेश्चन।
High yielding variety seeds are developed in research institutes, factories, Krisak Bharati cooperatives, none of the above. Come anyone? Come, Asutosh. Come. No. It's done in research institutes. Simple. भाई वहाँ पे टेस्टिंग किया जाएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक प्रकार से लैब ही हुआ ना. Which kharif crop is used for cattle feeding? Okay, Parvez. Okay, good. Jowar and Bajra are used for cattle feed. अब कैटल मतलब क्या होता है? पशु मवेशी, तुम लोग जो भी बोलो. उवेसी नहीं है, मवेशी है. Okay, second last questions. Okay, both questions are left now. Which of the following is the modern farming method? Multiple cropping, use of HYV seeds, use of chemical fertilizers, both B and C. Ritik? Both B and C. Okay, very good. ये chemical fertilizers and HYV seeds जो है modern farming का एक method है. अब multiple cropping, it's not a modern. ये पहले भी चलता था और आज भी चलता है. Yes. Which area in India has a low level of irrigation? You can simply use your common sense in this question. Anyone? Okay, let's end with Amit. Come. No? I wanted to end with you, but you didn't end it well. No, you should end it well. Okay, very good. Deccan Plateau. Why? No, riverine plains. Riverine plains are those plains made with the help of rivers. Coastal regions near to the sea. वहाँ पे वाटर सोर्स तो रहेंगे अंडरग्राउंड वाटर. रिवराइन प्लेन्स जो नदियाँ के द्वारा बना हुआ प्लेन्स. अब डेकन, यू शुड नो द सेंट्रल हाईलैंड्स जहाँ पे रिवर्स तो है बट दे आर नॉट दैट बिग रिवर्स. They are big but the volume of water is very less in comparison to the rivers that flows in your northern plains. These rivers are not perennial. Now what do you mean by perennial? जो कि सालों भर चलता है, वो रेन फेड रिवर्स है. क्या है? रेन फेड, बारिश के पानी से उनका स्रोत है. लेकिन हिमालय से आने वाली पानियां के द्वारा बनाया हुआ प्लेन्स रिवराइन प्लेन्स है. और एक तो फर्टाइल भी होते हैं, साथ साथ पानी भी बढ़िया से देती थे जाती है. इज दैट क्लियर? सो this much was the question. Was that clear? I hope you all understood. And this much for today. Thank you. Stay safe, stay healthy.